Hello everyone, welcome back to Tabby Family. I am Ankita Amang and I have brought you the topic A Living World and Classification. Adaptation means the gradual changes that occur in your body and your behavior in order to survive are called adaptations. अडेप्टेशन का मतलब है जो आपको कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता पर भी आपको करना ही पड़ता है क्योंकि आपको सर्वाइव करना है। जैसे कि आप आइलैंड में फंस गए हो, आप शाकाहारी होंगे पर भी आपको मांसाहारी तो खाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको जीवन रहना है तो करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पहले मंकीज थे, मंकी से हम लोग कैसे इंसान बने, हम लोग पहले हम लोग 4 पैर में चलते थे, फिर हम लोगों ने बाद में सीखते सीखते 2 पैर में चलना सीखा। इसको ही बोलते हैं अडेप्टेशन। तो अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक में आते हैं प्लांट्स के ऊपर आते हैं जो उसमें बहुत वैरायटी रहते हैं। देयर आर वेरी ग्रेट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। सम ग्रो इन लाइक terrestrial like land greenery everywhere, and some grows on water, even under the water and out, like they float. And some grows in areas that where we can't find even water like deserts, and some grow in snowy regions and all. So plants are of many types. Some plants are insectivorous to fulfill their needs for nitrogen because they don't find nitrogen sometimes, so they fulfill their needs by eating insects, and they are called insectivorous plants. Some plants are in huge sizes, while some plants are so small that we cannot even see from a microscope. So, as you can see, there are many diversity between the plants. So there must be in animals too, right? Yeah, there are like many types. So animals come in very types of varieties. They come in insects and big ones also, very big ones. And there are like many types: vertebrates, invertebrates. There are terrestrial, amphibian, aerial, and aquatic animals too. There are carnivorous, herbivorous. Some are mammals, some lay eggs and all. Now on our next topic, it is aquatic plants. So some of the aquatic plants roots are deeply formed on the ground to anchor the whole plant, and while some are floating, like they are floating like lotus also, even though its roots are deeply anchored on the ground, like there are many types. The surfaces of some aquatic plants are covered in waxing coating so that they to prevent from rot. And some of the plants, like they in the stems, they have cylinder like holes, and like in lotus you can see when you cut the stem you can see there are some kinds of holes in it because it is to help the plant withstand the fast currents and the strong currents so that the plant does not break at all. On our next topic, desert plants. Have you ever wondered why cactus has thorns and not leaves? And how can it survive without doing photosynthesis? The answer is simple. The Have you seen the very large stem? It is green in color so that it can perform photosynthesis. Whereas the thorns are actually leaves. They are modified into it so to reduce the evaporation of water, as in desert they are very hard to find water and their roots go deep down in the soil to find water. It is very hard to find them, so they do this. And the stem stores food and water both, so it is very thick, fleshy and all. Now on our next topic, snowy regions. So in snowy regions, like the trees are in conical shape. It is to prevent the snow accumulate on their branches, because sometimes the snow accumulates on branches making them very heavy, so it is to prevent the snow to not to accumulate on them and just slope it away. So, and the bark of the tree is very thick to help it to withstand the cold. तो जैसे कि आपको पता है एक्वेटिक प्लांट्स, कभी कभी कुछ कुछ एक्वेटिक प्लांट्स पानी के ऊपर होते हैं, वो लोग फ्लोट करे रहते हैं, वो लोग ऊपर तैरते हैं। पर कुछ कुछ होते हैं जो नीचे जमीन में गड़े हुए रहते हैं पानी के नीचे। तो उस प्लांट्स को एक वैक्स जैसा कोटिंग दिया रहता है, जैसे कि आपको पता है वो है ना, क्या बोलते हैं, कैंडल को जैसे वैक्स में बनाया रहता है वैसे ही कोटिंग जैसा कुछ तो रहता है उनके ऊपर। तो उसको ना उनको सड़ने से बचाता है, वो सारे प्लांट्स को सड़ने से बचाता है।
और कुछ कुछ प्लांट्स जैसे कि आपने देखा है लोटस, लोटस का जब आप उसका ना वो स्टेम रहता है ना वो काटते हो तो आपको दिखता है कि छोटी छोटी सर्कल्स रहते हैं, नहीं तो गोल और होल्स रहते हैं। तो वो क्योंकि रहता है क्योंकि कभी कभी पानी का भाव बहुत तेज रहता है और प्लांट टूट सकता है इफ वो पूरा फिल्ड है तो टूट जाएगा। तो ना टूटने से बचाने के लिए उसके अंदर होल्स रहते हैं छोटे छोटे। तो आपको फिर से हम लोग जाने वाले हैं डेजर्ट के टॉपिक में। तो आपने कभी सोचा है क्यों डेजर्ट डेजर्ट प्लांट्स में नहीं तो कैक्टस में क्यों थॉर्न्स होते हैं? क्योंकि उनके पानी उधर पानी मिलना एकदम असंभव है, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि मिल जाए उनको। तो कैक्टस का जो रहता है रूट्स वो बहुत डीप डाउन जाते हैं, बहुत नीचे तक गड़े हुए जाते हैं ताकि वो लोग पानी ढूंढ पाए। और उनका जो स्टेम रहता है जैसे कि आपने देखा है बहुत ऐसा गोल आकार जैसा रहता है ना वो कैक्टस, तो वो ग्रीन रहता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। और जो थॉर्न्स रहते हैं वो इसलिए है ताकि पानी ज्यादा उड़ के ना जाए, वो वेपर ना बन के चले जाए, इसलिए उसको कम करने के लिए थॉर्न्स बने रहते हैं। और स्टेम खाना पानी सब रखता है तो वही सबको प्रोडक्ट वो सबको देता रहता है खाना वगैरह। अब हम लोग आते हैं स्नो के टॉपिक में। स्नो के टॉपिक में आते हैं, जैसे कि आपने कभी नोटिस किया है जो स्नो के जगह में रहते हैं जिधर स्नो गिरते हैं उनका पेड़ का शेप ऐसा क्यों है? क्योंकि कब जब स्नो गिरता है तब ना इफ हमारा जैसा पेड़ है जैसे ऐसे फ्लैट ऐसे प्लेन एरियाज में वैसे पेड़ होंगे ना, तो जब वो स्नो गिरता है तो ना उसकी जगह में ही अटक जाता है, फिर गिरता ही नहीं। तो वैसे पेड़ बहुत भारी हो सकता है और कभी कभी गिर भी सकता है। तो और पेड़ को इतना ठंडी भी हो सकता है जैसे कि वो बच ही ना पाए और कभी कभी सूख जाते हैं। तो उनका जो कोन जैसा शेप रहता है ना वो ना स्नो आने से पहले वो ऐसे करके निकल जाता है ताकि वो जा ना पाए। और आपने देखा होगा कैसे वो उन लोग का वो बाक रहता है एकदम जाड़ा सा रहता है, वो ताकि वो उनसे वो ठंड से बच पाए इसलिए वो जाड़ा सा रहता है। Ever seen the in the forest the trees are very high. It is to get the sunlight, maximum sunlight as soon as possible they can get inside the forest. Do you see shrubs everywhere? No one, right? You only see the grass, small grasses and sometimes the trees. There are many of them are trees. And when you go outside like the river or the shore you go on the banks, you see many shrubs there. So in those they are, and there are vines too. Vines climb the trees, the big trees. They use them so that they can get up and get the sunlight. They are very clever. The vines are very clever. आप कभी जंगल में जाते हो तो आप जंगल के अंदर चल रहे हो तो आपको क्या नोटिस करता है? आपको छोटे छोटे श्रब्स दिखते हैं? नहीं ना, झाड़ वगैरह नहीं दिखते, आपको सिर्फ बड़े बड़े लंबे लंबे लकड़े वाले वो पेड़ दिखते हैं, बहुत लंबे लंबे। वो पेड़ लंबे होते हैं ताकि वो लोग सन को मीट कर पाए और उनका सनलाइट ले ले ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। पर वो जो श्रब्स रहते हैं ना वो कभी नीचे नहीं रहते क्योंकि उनको सनलाइट तो मिलने वाला है नहीं, तो उनको रह के क्या ही फायदा। तो जब भी आप कैसे किनारे में जाते हो ना, किनारे में मिलता है, बीच को नहीं, बीच को छोड़ के किनारे में जाते हो तो उधर ना श्रब्स वगैरह रहते हैं, झाड़ वगैरह रहते हैं, वो लोग बहुत खिले रहते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि सन तो उनको सनलाइट तो मिल रही है उधर से जल्दी आपको मिल रही है ना उनको, इसलिए वो लोग उधर ज्यादातर रहते हैं। और वाइन्स रहते हैं, वाइन्स जो आपने देखा होगा जब भी आप किधर जाओगे ना जंगलों में तो आपको दिखता है कि ऐसे ऐसे चढ़े रहते कुछ तो पेड़ वगैरह। ग्रेप्स भी ऐसे ही है, वाइन्स ही है। तो वो वाइन्स रहते हैं ना वो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं ना, उसके हेल्प की मदद से वो लोग ऊपर जाके सनलाइट लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हमारा प्लांट का पूरा डाइवर्सिटी वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल्स का करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बाय।